stands for nanoelectronics. So when we say nano, we mean that the dimensions of the material is being reduced. So initially it was a 3D material. So we reduce one dimension, but if we make one dimension of the order of nano, it becomes a 2D material. For example, the thin films. And if you reduce another dimension, it becomes 1D. Wire or rods, and if you confine in the dimension, it becomes 0 dimension. It is known as quantum dots. So this comes under nanomaterials. Now all these materials, they have to show quantum effects. Means the energy is not continuous, it becomes discrete in nature. Now, by nanoelectronics, it means that we shall be using this concept in the field of electronics. So, electronics means basically we will be talking about devices which are based upon the flow of electrons. Electronic flow capable devices based on current, voltage, resistance. These are all concepts of electronics. Now, just to start with, suppose you have a conductor, right? You see electron जा रहा है, पास हो रहा है, current मिल रहा है, so V is equal to IR. This is, we very well know this equation, Ohm's law. What is R? Resistance. So unit क्या है? Ohm, OHM. What is inverse of R? It's called inverse of R. Conductance, sigma. Unit क्या है? O inverse या mho? MHO square inverse और उसके बाद Siemens unit. Right. Resistivity is the dimensional dependence on resistance. R is equal to rho is equal to R L by A. ठीक है? This is resistivity. तो एक certain dimension जाने के बाद इधर resistance कैसे change होता है? अच्छा, now the question is, ये तो normal bulk, yes, this stands for the bulk. कोई भी current से wire pass हो रहा है तो that comes in the regime of bulk. So when we are reducing the dimension, अच्छा ये why does the resistance arise on the first one? Resistance हो रहा है, ये आ कहाँ से है? Resistance to the flow of electrons. Why does it happen? What is the reason? मान लो कॉपर है, कॉपर में आयनिक कोर्स है, मेटल से कॉपर, इससे
तो यहाँ पे ऐसे आयनिक मेटेलिक बॉन्ड है, आयनिक कोर्स है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो वाई, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग दैट इज टेकिंग प्लेस, कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन में कोलाइड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन से आयनिक जो कोर्स हैं उसके साथ भी कोलाइड हो रहा है, right? So due to that collision we are getting a resistance to the flow of electron. So this is the reason why this resistance इसी कारण से आता है, right? अच्छा, now the question is, हम लोग when we reduce this dimension to the level of nanometer, nanometer में जो reduce होगा तो जो लेंथ का लोग नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन्स। यहाँ पे कोलिजन हुआ मान लें और यहाँ पे कोलिजन हुआ, इसके बीच हाउ मच पाथ एज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, दिस इज द मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो जितना कम मीन फ्री पाथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, the number of times it will collide more। तो मैं जब इस कॉपर मटेरियल के डायमेंशन को नैनोमीटर रेंज में ले आता हूँ, मान लो दिस इज लैम्डा, मैं इसका जो डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर है और इट एज d, तो d हैज गॉन टू द रेंज ऑफ नैनोमीटर, ठीक है, such that d is less than lambda। समझ रहे हो? इसका जो डायनामिक डायमेंशन है वो मीन फ्री पाथ से कम हो गया। दैट मीन्स दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन जितना मूव करता उससे भी छोटा मेरा टोटल सिस्टम का डायमेंशन ही हो गया है। सो डज दैट मीन दैट देयर विल बी नो कोलिजन? Classically, what do you think? There shouldn't be any collision. So there shouldn't be any resistance at all. जब polarity नहीं होगा इलेक्ट्रॉन में तो resistance कहाँ से होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता, okay? Because as in the bulk material, we are talking about this is the bulk resistance, the bulk conductance and bulk resistance. जैसे हम लोग नैनोमीटर में चले जाते हैं, नैनोमीटर डायमेंशंस में चले जाते हैं, we will be talking about quantum conductance. जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है in the case of nanometer, the same way that conductance also gets quantized. तो पहले मैं let me write the expression of the quantum conductance, इसको बोलते हैं Landauer conductance। Landauer conductance, and it is given as G is equal to G0 sigma T। I'm telling you what is the meaning of it. G is equal to G0 sigma T. This G0 is again equal to E square by pi h cross, ठीक है, E square by pi h cross। तो what is h cross? Is the Planck's constant, h by 2 pi। तो मैं if I write h in terms of h by 2 pi, this is equal to 2 e square by h, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है
बेसिक क्वांटम ऑफ कंडक्टेंस E²/h, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर बेस्ड। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्लैंक्स कॉन्सेप्ट। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस 2? 2 तो वो जानते, इलेक्ट्रॉन हैज 2 states, upspin and downspin. That is called the degeneracy of the electron. There is something called degeneracy. The degeneracy means number of states in a particular energy level. So energy level में since electron का spin can be half or minus half, upstate and down state. So that is why due to the degeneracy you get this type. ठीक है? Now the question is what is this sigma T? Sigma मतलब it is actually giving you a sum of something, and so T is the transmission probability. Transmission probability, that the probability that electron entering a lead of a conductor will get out of the lead without getting deflected. It will be able to transmit through the channel. इसकी जो probability है that is given as T, और this sigma stands for the number of channels जितने हैं उतने. If there are one channel, there is one number of channels you can use. ठीक है, तो could you understand the meaning of this lambda or conductance? ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? E²/h का कितना? minus the other column 7.75 of the order of 10 to the power minus 5 mho. So this is the elementary you cannot have a system यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कोई रेजिस्टेंस हो ही ना, कुछ ना रेजिस्टेंस जरूर है, लैम्डा रेजिस्टेंस, ठीक है? Now, as we have said that we are reducing the dimension, तो हमको different dimensions में काम कर रहे हैं. What is our basic role? अच्छा, basic electron, basic अगर तुमको कोई बोले कि मुझको सबसे ऐसा कोई डिवाइस बनाना है जिससे छोटा डिवाइस पॉसिबल नहीं है in terms of electronics. So what will be in your mind? That means that device will consist of, in terms of electronic flow and उससे छोटा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं सकता, मतलब उससे कम. We will think of a device where जहाँ पे एक single electron जा रहा है, device based upon only one single electron, ठीक है ना? उससे तो कम हो नहीं सकता, because there has to be some एक तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम होना चाहिए. So that device is called the single electron transistor. This is the ultimate objective or ultimate goal of any person who is working in nanoelectronics. If you are thinking of it in terms of reducing the dimension, so this is नीचे की condition. So we are not talking about a single electron transistor. So it will depend upon passage of one electron. अच्छा, single electron समझ में आया? Transistor. You know what is a transistor? Diode, p-n junction diode. Come to this.
तो if we talk about electronic devices, पहले तो let's talk about diode first. Diode, इसमें जंक्शन दो होते थे, PN, JPN, उसके बाद आ गया ट्रांजिस्टर्स, इवोल्यूशन यहाँ पे P जंक्शन डायोड आया, उसके बाद बहुत सारे आते हैं, जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड्स, सोलर सेल्स एंड ऑल, ये सारे डायोड्स के ऊपर बेसिस। फिर आ गया ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में ट्रांजिस्टर एवोल्यूशन में यू गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स के बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आया। फील्ड इफेक्ट्स में यू हैड junction field effect transistors and insulated gate or MOSFET. Then we have CMOS. और इनके ऊपर फेस करके there were some digital electronics, logic gates and all. Based upon diodes and transistors. ये कीवर्ड बेस करके तो वो है ना, NOT gate or gates, they are based upon these limited devices. Feedback amplifier oscillators. So transistor has a major role to play. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर का होना बहुत जरूरी है। तो you know the P junction diode पता है ना, P type semiconductor. What is a P type semiconductor? Semiconductor metallurgy पर हो तो you need to understand that material aspect also. जो group 4 है कार्बन, group 3 है, 4, 5, ये 3 ग्रुप इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमोनी एंड बिस्मुथ। ऐसा है ठीक है, जस्ट चेक इट, आई मे बी रॉन्ग, कुछ शायद वर्ड्स इधर उधर हो गए। तो वाई इज जो सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये इस ग्रुप 4 के 2 एलिमेंट्स के ऊपर बेसिकली बेस्ड है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना? Because they are called, they are neither metal nor a non-metal, metalloids, group 4. ठीक है ना? That means ये जो semi-conductor word है, semi means half, why half word क्यों आ रहा है? नहीं, half localized, मतलब it is not exactly like conductor but half conductor, हाँ। So it means कि conductor जैसे metal को हम लोग conductor बोलते हैं और insulator, dielectric। तो यहाँ पे free electron flow हो रहा है ना, electron flow, so there is no band gap, conduction band and valence band overlap,
यहाँ पे फ्री फ्लो नहीं होता, यहाँ पे there is a gap, right? That gap means it's that naturally electron will not flow. Only if you supply some sort of external stimuli, then electron will jump to the conduction band, then it will start flowing. Basically half, not exactly like a semiconductor, but a half conductor, semi-metal. और इसमें तो it's not possible. बहुत ज़्यादा बैंड गैप होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो these properties are found in silicon and germanium, because they are metal alloys, इसलिए they are used as a conductor. अच्छा, now secondly हम लोग ये डोपिंग करते हैं. why do we dope it? First of all, p type, n type. डोप इसलिए करते हैं बिकॉज डोपिंग से हम लोग ये जो बैंड गैप है, हाँ मतलब डोप करने से देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स व्हिच आर फॉर्म्ड हियर. एन टाइप करोगे तो कंडक्शन बैंड के पास होगा, पी टाइप करोगे तो क्या करेगा. सो वी समहाउ वी रिड्यूस द बैंड गैप, रिड्यूस द बैंड गैप विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन बेटर इलेक्ट्रॉनिक करंट आपको ज़्यादा है, इसलिए लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है. तो दैट्स हाउ द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर केम इनटू द एग्जिस्टेंस. और फिर वी मेड द डायोड्स, पी जंक्शन डायोड्स, कनेक्ट पी टाइप एंड एन टाइप. और फिर देखा कि इट हैज़ गॉट डिफरेंट एप्लीकेशंस. Only application that was not possible through silicon and germanium was the light emission. Light emission silicon and germanium से नहीं होता था. इसका कारण ये था कि they were indirect band gap semiconductors. You know what is an indirect band gap semiconductor? Is indirect band gap semiconductor जिसका कि conduction band और valence band सेम की वैल्यू का नहीं है, ठीक है. तो मैं डीप जाने से पहले, बिफोर गोइंग डीप इनटू द डायइलेक्ट्रॉनिक्स, यू शुड हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट. इसको एक बार घर में जाकर देख लेना. सो वी हैव अ सिस्टम वेयर दिस इज द कंडक्शन बैंड, ठीक है, एंड द वैलेंस बैंड. डन था ना. Have you seen this diagram before? क्या है x एक्सिस में, क्या है y एक्सिस में, क्या है? ये कंडक्शन बैंड है, ये वाला तो हमने देखा है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड. हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, तो कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ये वाला. This is energy versus क्या? K. What is K? हाँ? You know, ठीक है ना. You know this? ये रिलेशनशिप पता है तुमको? P is equal to H cross K. ये पता है? What is this? लास्ट वाला जो इक्वेशन में लिखा है, क्या बोलते हैं उसको? कौन से हाइपोथेसिस का नाम है? डी प्रोबेबिलिटी.
क्या बोल रहा है? Don't have this is basically क्या बोल रहा है? P is a momentum. So anything which has got a mass and which has got a velocity, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, उसको मैटर वेव बोलते हैं, है ना? ये तुमको प्लस टू में पढ़ा है ना मैटर वेव? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स हुआ है तुम लोग, खत्म भी हो गया, तुम लोग इसको नहीं बोल पा रहे। मैटर वेव सर, एनीथिंग दैट इज मूविंग मास। अच्छा, इसका मतलब है कि इन्हीं है जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी एसोसिएटेड है, लेकिन वो इतना छोटा है कि इट्स ऑफ नो इनसिग्निफिकेंट। सो इट विल बी सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन द मास इज वेरी लेस। पी का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा मेरा लैम्डा का वैल्यू होगा। सो दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये लागू होता है। तो इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ P इज इक्वल टू H क्रॉस K। K इज नथिंग बट द वेव नंबर और मोमेंट 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, वेव नंबर भी बोल सकते हो, मोमेंटम भी बोल सकते हो जो। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इसका रिलेशन है, E वर्सेस E is equal to, if I put the value of P here, it becomes H cross square E square by 2m, जिसमें H cross और m are constants, variable is, ये कौन सा किस टाइप का इक्वेशन है ये? किस टाइप का इक्वेशन है? पैराबोलिक इक्वेशन, स्क्वायर है, कॉन्सेप्ट स्क्वायर। तो इसी पैराबोलिक इक्वेशन में ड्रॉ किया है दोनों के केस में, कंडक्शन बैंड के केस में पैराबोला। अच्छा, दोनों का कर्वेचर अलग क्यों है? वैलेंस बैंड का कर्वेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। व्हाई इज इट सो? इस इक्वेशन को देख के बोलो, एनर्जी और ये तो सेम है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? कर्वेचर यहाँ पे m के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों में जो चार्ज कैरियर है, वैलेंस बैंड में कौन सा चार्ज कैरियर है और कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर कौन सा है? वैलेंस बैंड में होल्स है और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है। That means basically this m, ये m जो हम लोग बोल रहे हैं, ये basically m is effective mass। Effective mass मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन when it is going through a solid, its mass is considered, it gets into different environments, इसका जो mass है हम लोग उसको effective mass कहते हैं। Effective mass of an electron is क्या? Greater than effective mass of an whole। इसी कारण से कर्वेचर में डिफरेंस है, राइट? सो जो मैं बोल रहा था कि इसका जो मिनिमा और इसका मैक्सिमा दे आर एट द सेम की वैल्यू। सो व्हेनेवर वी आर सप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, एनर्जी मान लो दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अप एंड इट इज कमिंग डाउन। लाइट एमिशन होगा, ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, केमियोल्यूमिनेसेंस, फोटोल्यूमिनेसेंस, व्हाटएवर वी कॉल इट शुड बी एन एनर्जी सप्लाइड, इट शुड मैच द बैंड गैप और इट शुड बी मोर देन द बैंड गैप, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है ना? अच्छा, नाउ द केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, देखोगे कि जो लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, LEDs वगैरह, वहाँ पे हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को यूज नहीं करते।
यहाँ पे सिर्फ करंट का मामला है, वी कैन यूज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बट जहाँ पे लाइट का मामला है वहाँ पे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को यूज नहीं किया जाता। क्या यूज किया जाता है? सम अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कैन यू नेम एनी सेमीकंडक्टर विच इज यूज्ड इन लाइट इमिटिंग डायोड्स? बोलूँगा तो टेन से आ रही है, मुझे बता दो। फ्रॉम द ग्रुप 3 and 5 यहाँ से, अच्छा मैं हिंट देता हूँ, दैट कॉल्ड 3-5 semiconductors. When you take an element from 3 ग्रुप 3 and take an element from ग्रुप 4, मतलब जो कि पी और एन टाइप करने में जो यूज होते हैं, है ना। डोपिंग जो होता है इसका पी टाइप, इसको डोप करोगे तो एन टाइप, पेंटावैलेंट को डोप करोगे तो एन टाइप, ये तो आई थिंक यू नो ऑल दीज थिंग्स, और ट्राइवैलेंट को डोप करोगे तो पी टाइप। बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट एमिशन। गैलियम आर्सेनाइड सुना है? सुना ना? इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली 3-4 conductors. So they are used for light emission because they have a band structure which is similar to this. लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि इनका जो कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड है, दे आर नॉट एट द सेम कंडक्शन बैंड यहाँ पे। मैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की केस में बोल रहा हूँ। सो इवन इफ लाइट हैज, तो यहाँ से इसको कर लो तो मान लो कि इनिशियली विद द एक्सटर्नल स्टिमुलस light maybe has gone to this region, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये जो पाथ है यहाँ पे आने तक So could you feel the difference? इस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल बना के यहाँ पे चला गया, then it will follow the same path and it will emit light. यहाँ पे क्या होगा कि after the electron has gone to this region, ये कुछ non-radiative process follow करेगा involving lattice vibrations, और इसको हम लोग बेसिकली फोनोनिक वाइब्रेशंस बोलते हैं। इन्वॉल्विंग फोनॉन्स, वाइब्रेशंस का जो क्वांटम है दैट इज फोनॉन। So this is non-radiative. So energy, it has to go to the minimum before going down. So ये जो process of giving non-radiative radiation, इससे क्या होता है कि इसकी it is not an efficient light emitting. Doesn't emit light. So this is what is being followed for
silicon and germanium direct band gap semiconductors बोलते हैं इनको, gallium arsenide, indium phosphide. So we have 3, 5 semiconductors. So they are direct. So diodes तो हो गया. So this is what a diode is, clean junction diode. Then came the age of transistors. Transistors में we have emitters. यहाँ पे 2 जंक्शन हुआ करता था. sorry यहाँ पे 1 ही जंक्शन हुआ करता था. Junction of P and N. तो फिर we had bipolar transistors. Basically we had an emitters, we had a collector. We have in base PCB transistors होते थे. We were represented in this fashion. Emitter, collector, and base. Okay. We were bipolar junction. उसके बाद the next step was we moved to field effect transistors. Field effect transistor मतलब it will depend upon the electric field that is being supplied. Field effect. जैसे there is a microscopic technique called FESC. FEST, field effect scanning electron microscope. So you produce some electrons यहाँ पे field emissions. उसी तरह से there is something called a field effect transistor. इसके 2 parts होते हैं. There are 2 types. One is junction field effect transistors and metal oxide field effect transistors. ठीक है. और आजकल जो लेटेस्ट जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है दैट इज इनफैक्ट इन योर स्मार्टफोन्स, उसको हम बोलते हैं FinFET. FinFET. I'm coming to that. What is a FinFET? So basically, they are the heart of something called SoC. SoC stands for System on Chip. Okay, this is the latest version. और what we are aiming for, हम लोग किसको एम कर रहे हैं? We are aiming for single electron transistors, SET. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव करे from one quarter. ठीक है. So मैं थोड़ा सा SET को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ because that is more relevant. So SET. अच्छा, ये जो 2 ट्रांजिस्टर्स मैंने इसमें लिए, यहाँ पे जैसे एमिटर कलेक्टर एंड गेट होता था, तो इन FET instead of emitter collector and gate we call the 3 terminals जो होते हैं, we call them as S, D and G. S stands for source, D stands for drain, or G stands for the gate. So the
basic thing is that there will be a source of electron, there will be a drain, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन घुसेगा बाहर निकलेगा, और बीच में जो गेट है that will actually control the current. This is the basic idea. Source, drain and gate. यहाँ पे एमिटर, कलेक्टर एंड बेस उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट. ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स में भी you have a source, you have a drain and you have a gate. Okay, so there is a source, that's a gate, and यहाँ पे this gate is important. ये जो गेट है, ये गेट we are considering it as a nano ion, एक नैनो साइज मटेरियल. ठीक है, तो और करंट क्या होगा, 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन करके करंट जाएगा. तो फ्रॉम द सोर्स देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड यहाँ पे, एंड फिर दिस हाउ इट विल वर्क. बट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी something called a tunnel junction associated with this. Right? A tunnel junction. This will have an energy barrier. तुम लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है ना, तो बेसिक नैनो मटेरियल्स किसी ने पढ़ा है तुम लोगों को? नहीं पढ़ा है. अच्छा, एनर्जी बैरियर एक होगा. अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म कूलम्ब ब्लॉकेट? कूलम्ब ब्लॉकेट सुना? करेक्ट. Coulomb blockade is the energy barrier. Coulomb blockade is the energy barrier that if it has an already electron inside the gate, for me to put another electron, it will has to pass through an energy barrier. ठीक है? And that energy, Coulomb blockade का energy barrier है. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. It is given as E square by C. What is C? C is capacitance. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. C is the and यहाँ पे capacitance क्यों यूज किया? because I am considering this nano island to be a parallel plate मैं इसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह कंसिडर कर रहा हूँ. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटल सेक्शंस होते हैं, बीच में क्या होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है ना. कैपेसिटर जैसे होता है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो मैं क्या इनके अंदर से करंट अलाउ करेंगे, कैन आई पास द करंट? आई कैन नॉट पास unless there is a tunnel. टनलिंग, you know what is tunneling? क्वांटम मैकेनिक्स में टनलिंग पढ़ा है.
barrier ऐसे, right? और एक इलेक्ट्रॉन आ रही है IKX, E floor IKX, visiting the target. इसका एनर्जी है E, इसका barrier energy is V. So the turning phenomena says that even if E is less than V, classically it cannot go to the other side. But the tunneling phenomena says that even if the energy of E is less than V, still the wave function can pass to the other side. Size का value को use करते हैं. What is this basically? This is the probability. Schrodinger's cat, सुना है ना? What is Schrodinger's cat? Schrodinger's cat is a cat is inside a box. So cat is outside the box. What is making the cat outside the box is the probability that the cat can stay outside the box is making the cat stay outside the box. So that is the concept here. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नैनो एलिमेंट से टनल होता है. हम लोग इसको पैराबोलिक कैपेसिटर की तरह कंसीडर करते हैं और इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट डायग्राम सर्किट अगर हमको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि कैसे और इस नैनो आइलैंड को लोग इस तरीके से ड्रॉ पैराबोलिक कैपेसिटर बोल सकते हो, नैनो आइलैंड को बोल सकते हो. So if this is associated with a current source, the electron will start to flow from the work plate to the upper plate. So this electron, so the upper plate will have Q minus E and the lower plate will have minus Q plus E. इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे गया है, ठीक है, तो सिंस वी आर कंसीडरिंग इट एज अ पैराबोलिक कैपेसिटर, इसका जो कैपेसिटेंस है वी आर कंसीडरिंग दैट इन अ कूलम्ब ब्लॉक. ठीक है. तो बेसिकली ये जो पैसेज ऑफ करंट है ना, ये एक्चुअली फ्लोज एन ऑसिलेशन, कूलम्ब ऑसिलेशन फॉलो करता है ऐसे ऐसे. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. आई थिंक ये मैंने शायद एक वीडियो भी वहाँ पर डाला है एंड देयर इज अ स्टडी मटेरियल आल्सो. सो ठीक है, आई विल स्टॉप हियर बिकॉज एक दिन में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है. सो यू जस्ट गो ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना है, जो बेसिक्स है ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी शायद नहीं हुआ तुम लोगों का, द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. सो आई विल स्टार्ट विथ नैनो, देन आई हैव टू मूव टू इलेक्ट्रॉनिक्स. इस बार बहुत लोड है.